first paper containing 5 units, I will do with the unit 2 and 3. And then the ninth one, report writing. Okay? Unit 2 के साथ तक काम करते हैं? Unit 3 and 4 and 9. Another question, you will be more comfortable with English or Hindi or mixing? Mixing. तो एक काम कर सकते हैं कि एक चीज को इंग्लिश में बता दें आपको ताकि आप प्रोफेशनली तैयार हो, Yes, sir. और फिर हिंदी में बता दें ताकि आप मेंटली तैयार हो. Yes. ठीक है? Yes. Here are two topics: literature survey, problem definition, and the second one is planning research. For the convenience of the formulation of the syllabus, they have distinguished these two topics, but actually they stand together. Yes. Unless you have a planning for research, why will you do literature survey? And unless you do literature survey, how will you plan research? So two things stand actually mixed together. That is the literature survey as well as planning of research. Unfortunately, we do not have any textbooks so long, but certain notes on internet and all that are given. So, for your convenience, you can follow them. And if you read, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए. Yes, sir. रही नोट्स की बात, हम आप में से किसी एक जिम्मेदार आदमी को दे देंगे. कृपया फोटोकॉपी करा के आपस में बांट लीजिएगा, Yes. पढ़ लीजिएगा. जो न समझ में आए कल मैं फिर 2:15 बजे 2:30 बजे के 1:45 बजे के आसपास आ जाऊंगा. Give me your questions in writing and I will explain it. Okay? Okay. Are you happy with this plan? Are you happy with this plan? Yes. So the first thing is, although the other teacher in the unit 2 will teach you what is research. You know, there are two words. इसका रास्ता कहाँ गया भाई? As per Oxford Dictionary, re stands for back and search is to find out. So it is very much apparent that something already known. अच्छा ये बताइए आप लोगों किसके सब्जेक्ट लड़के हैं? जूलॉजी कितने हैं? बॉटनी वाले हैं? इसके अलावा कोई केमिस्ट्री का भी है? Yes, sir. मैथ्स एंड केमिस्ट्री. Physics भी है. I will be crippled to give examples from physics and mathematics, but in biology subjects I will give. Something is known. For mathematics people, it may be set theory, which is more philosophy. For zoology persons, say fish fauna of Kanpur. For botany people, the flora of Kanpur University or some any other localized place. Suppose you have a list of them, or an information earlier with you, that this is fauna, this is flora, this is theory, this is formulation, this is principle, and everything is known to you. Then what happens that when you go for research, sorry, I have to go back. What is research? If you do something, रास्ता चलते देख लिया ये कोई नई स्पीशीज दिख रही है, दिस डज नॉट सर्व. ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, दिस डज नॉट सर्व. You have to be very systematic to re-study it. What is research? Is to find out in that which is already searched. Largely something is known. Then you have to find out where the gaping questions are there which have not been answered.
There are certain problems where are unanswerable questions. उनका जवाब ही नहीं हो सकता कि question may be absurd. But for most of the time when you do intend to do research, you have to find out where is the gap, where is the questionability, where is unexplainable situations or unexplained situations. If something is unexplainable, drop it. If explainable, then follow a scientific method. Scientific method stands for nothing but systematic method. Technically, being solemn-headed in sciences, हम लोगों को एक गर्व हो जाता है ना कि हम लोग आउटसाइड वालों से ज़्यादा सुपीरियर है. ऐसा होता नहीं है. दिमाग सबके एक सा होता है. Then doctors for their disease and always almost knocking the door. तो सिस्टमेटाइज करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए. हाउ विल यू फॉलो ए पर्टिकुलर रिसर्च सिस्टम? आई हैव जस्ट फ्रेम्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इट. शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे. Yes. तो मेरा ख्याल है आप इसको अगर फोटो कॉपी करा लें या एक आदमी अपने मोबाइल में फोटो खींच के Yes. सबको बांट दीजिए, Yes, sir. तो एक बेसिक चीज आपको क्लियर हो. Yes, sir. ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप है. हाँ? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. Nice, add me to the same so that I can also contribute if I find something. So research is actually a systematic proceeding of study in a already known field for an unanswered question in a scientific way. Jumping from one place to another, this is not research. When you proceed in a systematic method from step 1 to 2 to 3, and before that, when a question is before you, suppose India is having a large extent of extinction of diabetes. Now you can research on them. There are 2 or 3 possibilities. Age group of diabetic patients, possible reasons of diabetes, most popular medicines being followed in diabetes. Yet another is genetic diabetes and acquired diabetes. Several things are there. Now it depends on your taste which you want to do. You are interested in diabetes or in thyroid. You may be interested in, say, plants, phenerogams or cryptogams. You may be interested in mathematical philosophies, or you may be interested in equations and thereby derivation of them, or formulation of theories into mathematics. So the people of physics can do. They can find out certain things and then they have to proceed systematically. So first thing is this, that please write down, research is a systematic finding of an answer which the researcher is interested into. रिसर्च करने वाला जिसमें अपना रुचि महसूस करे, उसका जवाब ढंग से ढूंढना, वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ढूंढना, यही रिसर्च है. ठीक है? अब प्रश्न ये आता है कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा रिसर्च टॉपिक क्या होना चाहिए. असल में ये दोनों टॉपिक इस तरह के हैं जो पढ़ाई नहीं जानी चाहिए. ये सब गाइड पढ़ाता है, लेकिन जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी वी हैव टू डू विद इट. Recognition of a research problem again requires logical approach. Suppose you are reading the economic development of India and you meet certain years where there was a recession. स्लम्प आया, एकदम से इकोनॉमी डंप हो गई, रुक गई. आपके मन में कई सवाल आएंगे और अगर आप इस पर जाते हैं कि ये इकोनॉमी फेल्योर या स्लगिशनेस ये क्यों आई, तो आप पहले तो ये तय करो कि आप किस इकोनॉमी की बात कर रहे हो. Whether you are talking of industry or you are
or you are talking of working class, या ऑर्गेनाइज्ड लेबर की बात कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर फील्ड एंड दैट विल डिफाइन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च. So what is there, why you should be logical? पहले तो खुद प्रश्न कीजिए और खुद जवाब दीजिए कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, and try to find it out. Logically discuss it within your mind whether the topic I am choosing is a valid one. If it is not a valid topic, अब आया तो रिसेशन है और आप उस समय बात करने लगे इन्फ्लेशन की, बाजार में नोट कैसे बढ़ गया, तो भाई आदमी के पास खाने को नहीं, आप कह रहे हैं नोट कैसे बढ़ गया, तो ये नॉनसेंस सवाल हुआ कि नहीं हुआ. So do not raise nonsense questions. Raise logical questions which lead you to understand your problem. पहले अपनी प्रॉब्लम को खुद समझिए कि हम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं. When you will have a logical approach to it, the outcome of that will be that at certain point of time you will realize that exactly this is what I want to know. And I want to let people know. रिसर्च का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि हम तो जाने ही, दूसरों को भी जलवाएं ताकि उस इशू पर आगे भी काम हो सके. तो बेटा टाइम का ध्यान रखा करो या फिर कल से हम भी 2:45 बजे आऊंगे. हमसे यूनिवर्सिटी ज्यादा ये कहे कि आप देर से आए हैं इसलिए हम अटेंडेंस नहीं मानेंगे तो ना मानो, इट हार्डली मैटर्स टू मी. लेकिन आप लोग टाइम पे ध्यान रखो, देर हो तो फिर बाद में आइए थोड़ा सा. तो द सिचुएशन इज, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, वैलिडिटी ऑफ योर सिस्टम और द टॉपिक और द सब्जेक्ट, वट एवर यू विश टू कॉल. दूसरा, उस पर लिटरेचर उपलब्ध है कि नहीं है, ये देखने की बात होगी. यहाँ पे ये तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट मिल जाती है. टॉपिक ढूंढिए, फिर देखिए लिटरेचर है कि नहीं है. फिर आएगा उसमें कि जो इंफॉर्मेशन है वो सीधे सीधे रेलेवेंट है या बहुत दाहिने बाएं घूम के उसमें पहुंचना है, वेदर इट इज डायरेक्टली रेलेवेंट और इट इज समथिंग अबाउट, पुशिंग अबाउट. And then whether it leads to some conclusions or not. If it leads to conclusions, then you have to understand what conclusions have been drawn and what you want to know, whether your curiosity is covered within those conclusions or it is not covered. And finally, the product of the questions for the additional inquiries. कुल प्रश्न जो आपने पूछे, उस पर आपने जो अध्ययन किया, उन अध्ययनों से फिर कुछ प्रश्न पैदा होंगे और अपने उत्तर के बाद वो प्रश्न आप छोड़ देंगे आगे की रिसर्च के लिए. एंड यू विल रेज इट इन योर रिसर्च राइटिंग दैट दीज थिंग्स हैव रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड इवन आफ्टर हैविंग परसुएशन ऑफ दिस वर्क फॉर दिस लेंथ ऑफ टाइम. ओनली दिस आंसर कुड बी सॉर्ट आउट एंड द रेस्ट आर unresolved which are as follows. Any true research is always leaving space for the new research. सवाल वही है, जितना सर्च हो चुका है उसी में फिर से ढूंढने का स्कोप है कि नहीं है, तब तो रिसर्च होगी. अदरवाइज यू कैन नॉट पुट द लास्ट वर्ड. आइंस्टीन ने भी कहा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट द लास्ट वर्ड. तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि नहीं, इट वाज नॉट द लास्ट वर्ड, ही मेड करेक्शंस. तो एनी रिसर्च लीड्स टू फर्दर रिसर्च. जो चीज नॉन एकेडमिक है और एक्स्ट्रा एकेडमिक है वो ये है कि जब आप किसी टॉपिक पर काम करते हैं तो काम करते करते आपको उसका एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये सीखते जाते हैं कि क्या हमारे लिए रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है. और उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये भी जानते जाते हैं कि इसमें यहाँ पर हाथ डालेंगे तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे. हर जगह हर तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती. तो when you have फिर से एक बार सुन लीजिए. when you have a curiosity, try to find out
उसी पर चल रहे हैं अभी। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च वही है कि पहले आपने क्यूरियोसिटी का टॉपिक ढूंढिए, उसको पढ़िए, पढ़ने में देखिए कि लिटरेचर कितना उपलब्ध है, हम क्या जानना चाहते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारे बेसिक तो रिसोर्स टेक्स्ट बुक होता है, पहले वहां से पढ़िए, जो उसमें एक्सप्लेन है। उसके बाद जो नहीं है उसके लिए फिर ऊपर लिटरेचर पर जाइए, वहां मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है, देन फर्दर रेज द क्वेश्चन कि ये होगा कैसे। तो होगा कैसे? दिस इज नोन एज डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च सर्वे और रिसर्च design of mathematical formulae, all that. But basically, you have to first document out as to how much literature is available. Tomorrow we talk on literature. Today we are doing only with research, only for reference we are talking of it, that literature survey. So do the literature survey. Now the problem is, sometimes there is so much of literature that it is difficult to work with all that. सवाल बहुत से, जितना बड़ा लिटरेचर होगा उतने ही क्वेश्चंस होंगे। तो एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ टॉपिक। दिस इज अ फार्मूला व्हिच आई हैव फॉर्मुलेटेड। कहीं टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा कि एक्सटेंशन ऑफ लिटरेचर, आई मीन द बॉडी ऑफ लिटरेचर is inversely proportional to the extension or say the spectrum of your research which you are going to do. बहुत कुछ ज्यादा मालूम है तो आपके लिए बहुत थोड़ा स्कोप बचता है कि इतनी सी चीजें हमें मालूम है। More knowledge restricts your scope of research. Less knowledge gives you more opportunity to do larger research or say to cover a larger field. So there are three limitations. Before जब आप फॉर्मुलेट करेंगे किसी अपने टॉपिक को, तो आपको तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि जिस सब्जेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसमें साहित्य है कि नहीं। अब सपोज करिए आप कॉस्मिक रेज पे काम करने लगे, तो कॉस्मिक रेज पे कानपुर में कितना लिटरेचर है, IIT रोज दौड़ो, और शायद IIT में मिले ना मिले, वहां कोई कॉस्मिक रेज पे काम कर रहा है, मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। आप DNA पे काम करना चाहो तो वेदर दैट मच लिटरेचर इज अवेलेबल, और DNA वगैरह छोड़ दीजिए, BSc और हाई स्कूल लेवल साइंस लीजिए, अगर आप एवोल्यूशन पे काम करना चाहो तो कितना लिटरेचर अवेलेबल है, गो एंड फाइंड आउट, वेरी लिटिल इज देयर। बुक्स आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, सब में वही लैमार्क, वही डार्विन, वही चार प्रिंसिपल इनके, वही चार प्रिंसिपल उनके, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप मूलर के पेपर्स ना पढ़ा, उसके पहले कुछ नहीं। तो किस सब्जेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं और सब्जेक्ट में चॉइस क्या है आपकी, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप टू गो टुवर्ड्स। देन यू गो फॉर लिटरेचर एज आई सेड यू, then whatever documentation you go through, please make notes of them. किताब पढ़ के फेंक दी, रख दी, या जर्नल पढ़ा रख दिया, no. You must have a regular diary, what you have consulted, what you have to consult further. Okay? Consulting currently and consulting in future, both should be in your mind. हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, क्या और पढ़ना है, या किस दिशा में, अब क्या पढ़ने से नहीं, किस दिशा में हमें और पढ़ना है, वो दिशा तय करेगी कि आपको क्या पढ़ना है। एंड थर्ड थिंग इज टाइम, कितना समय रिसर्च करने में। सपोज यू आर एजिंग ऑलरेडी 35 years and you have a plan of 10 years, then where will you have employment? 40 तो क्रॉस कर जाएंगे। Apart from this, suppose you are 20 years old, still you hardly have 2-3 years or a little more to devote for the academic research as such, which gives you a degree. Non-degree research can be continued for any length of life. But I think George खलकट मत किया करो, at least learn the normal courtesy to close the door. टाइम फ्रेम, सब्जेक्ट,
अब इसके बाद आई जो सब्जेक्ट हम पिकअप कर रहे हैं उसकी फैसिलिटी कितनी है हमारे पास। अगर आप यहां बैठ के कॉम्परेटिव एनाटॉमी पे काम करना चाहें तो वाइल्ड लाइफ वाले जानवर नहीं पकड़ने देंगे, करो कब? संभव नहीं है। अगर आप यहां बैठ करके कोई ऐसा काम करना चाहें जिसकी लेबोरेटरी फैसिलिटी ना हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के बाद जैसे ही आपको लगे कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, सबसे पहले प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कि हम इसको कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Once a student came to me, I want to do research on fish genetics. Okay, if you are ready to go, every alternate date Lucknow, fish genetic resource bureau, then you do it. If it is not possible, then take the problem which is possible. ऐसा काम क्यों करो जो पॉसिबल नहीं है? तो 3 basic fundamentals. Your interest is of prime importance. Available literature is the second importance, and facilities are the last and most compulsive importance. If you don't have facilities, you cannot carry out any research. Certainly you cannot. Then इतना हो गया तो लिटरेचर आपने जो किया आज के ज़माने में, the latest system is to go on Google to put the topic, to find it out. I am taking the later topic first for the convenience of description. अब when you have gone through the literature and I have found out that this is my topic, तो साथ के 10-20 लोगों से और ये डिस्कस कर लीजिए, भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ज्यादातर लोगों का अगर रिसर्च फील्ड एक ही, फील्ड तो एक हो सकता है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अगर एक ही है, कहना पाई की वैल्यू पे हम भी काम कर रहे हो, कहना वो भी कर रहे हैं, तो उससे अच्छा उसको छोड़ किसी इजी टॉपिक पे काम करने लगो, which should be at least different from others. If it is all the same, your evaluation may be of a lower grade, and the chances of copying, plagiarism are very much there. नकल भी होगी, क्योंकि वो भी वहीं से पढ़ के आएंगे, वो भी वहीं से पढ़ के आएंगे, वो भी वहीं से पढ़ के आएंगे. So you stand up. They apply a force to open the door, but don't apply a force to close the door. उसको ओपन कर दिया है, खुला कर दिया। So, कहाँ खुला? असल में ये टॉपिक कोई ऐसा तो है नहीं सिस्टमेटिक हो। आपको अपने कॉमन सेंस से पढ़ाना है और आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना है इसको समझने के लिए। हाँ, अगर मैं सिलेबस बनाता तो मैं टॉपिक रखता ही नहीं, लिख देता इसको, लीव इट टू द सुपरवाइजर। स्टैंडर्ड लिटरेचर में भी एक बात दी हुई है कि अपना सारा कार्यक्रम करने के बाद you should go and disclose your findings, your survey, your interest, your formulation, and the limitations of facilities. Make notes of all these things. आप उसके जो भी करते जाए उसको लिखते जाइए, ये कर लिया, ये किया, इसमें ये निकला, इसमें ये निकला, इसमें ये निकला, and then consult your supervisor. He is actually the final authority. क्योंकि एक चौथा कंपल्शन और है। I said you, पहला कंपल्शन सब्जेक्ट की चॉइस, दूसरा कंपल्शन फैसिलिटीज क्या है, तीसरा कंपल्शन टाइम क्या है, चौथा कंपल्शन ये है कि गाइडेंस इज अवेलेबल और नॉट। आप बड़े हाई फाई टॉपिक में काम करना चाहते हैं, गाइडेंस इज नॉट अवेलेबल, सुपरवाइजर कह रहा हम जानते ही नहीं, व्हाट विल यू डू? सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन 4 corners: the facilities, the availability of literature, your interest and capability or interest of supervisor.
because research is never a single-handed work. It is two ends oriented work. Supervisor and the student. In between, all the things are running. आप जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, you report it to him. He will let you know from time to time that this is not desirable for you. This is desirable. Now, what happens when you have your questions and you study the literature? You find out certain answers, you don't find out certain answers. Naturally, the knowledge of your supervisor is more than you at the time when you start with the research. Although, when you are completing your research, nobody in the world knows more than you know about the topic. Because you have been spending time to know everything about a very small thing. So you know maximum of it, nobody in the world knows. But when you begin, your supervisor knows how to begin and where are the curiosities to be raised further. So you formulate out your system. This is my question. This is the available literature. This much has been described, but this has not been described. So, sir, I want to take this topic. When you provide him with your notes and literature, he will go through it. And very possibly he can find out additional questions that you have dropped these things. Please add it to your research program. And when the suggestions from the two sides, your submission and his suggestions, the two come at one place, then you are enabled to formulate a particular problem, what to do. करना क्या है? ये कह देना बहुत आसान है कि what is the frequency of say obesity in India? कितने लोग मोटे हैं? लेकिन इसको कितने चरणों में आप करेंगे? How many of the steps you have to take for? This is the second step, that this will be the procedure of conducting a particular research. So now we come down. The first point is your interest. बेटा दिख रहा है? Yes. और बड़ा बड़ा लिखा है? हाँ? देख रहे हैं. Interest gives rise to in subject, then branch of subject, कभी-कभी क्या होता है कि people do say biostatistics. Now the candidate may be from biology or can be from statistics. So you have to choose कि subject क्या हमें लेना है, फिर subject में branch क्या workout करनी है. This should be clear to you. So what I say कि interest आपका किस subject में है और उसकी किस branch में है. Statistics का या mathematics का आदमी comparative anatomy में काम नहीं कर सकता. हाँ, ये कर सकता है कि length weight relationship in different in particular species of animals. For this, he will require one person from zoology to identify the species and one person from statistics or mathematics to accumulate the data. Right? So, branch of subject. Thereafter, you will go for literature. कितना available है? Now, this literature is inversely proportional to scope of topic. ज़्यादा literature है तो आप कोई छोटा सा टुकड़ा उठा लें और कम literature है then you have number of questions to be answered. Suppose you take length weight relationship, तब कोई literature नहीं है तो बोले आप चूहे पे भी कर लें, रैबिट पे भी कर लें, गिलहरी पे भी कर लें. लेकिन अगर गिलहरी और रैबिट पर अवेलेबल है then you are left only with चूहा, topic is reduced. ठीक है. इसी तरह से probability खूब लोग जानते हैं. There are small scopes. और अगर आपको रिग्रेशन वर्कआउट करना हो
Many things about regression are not known. In different biological fields are different economic fields and all that. So you can cover them up at a larger extent. So these two things are inversely proportional scope of topic. Then third one is facilities. फैसिलिटीज कोई ऑथर नहीं लिखता, न नेट पे है न किसी किताब में। विले स्टर्न से किताब है हाउ टू राइट थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग, तो टॉपिक तो उसका थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग है, लेकिन उसमें सारी चीजें डिस्कस की उन्होंने। आई हैड द बुक लॉन्ग बैक सम 30 years बैक, उसमें भी उन्होंने ये कहा फैसिलिटीज, बट माय सुपरवाइजर यूज्ड टू से अनलेस यू हैव फैसिलिटीज डोंट ले योर हैंड ऑन दैट टॉपिक। टॉपिक बड़ा सुंदर है, लिटरेचर खूब अवेलेबल है, लेकिन क्या बताऊं दर्जी नहीं शर्ट सिले को, तो पहले फाइंड आउट दर्जी है कि नहीं। यू कैन अफोर्ड मनी, यू कैन परचेज द क्लॉथ एंड एवरीथिंग, बट अनलेस देयर इज अ टेलर हु विल गिव यू द शर्ट, अनलेस देयर आर फैसिलिटीज यू कैन नॉट वर्क। नाउ टेक नोट्स ऑफ योर लिटरेचर systematically. Now literature can come from electronic media, paper, that is the printing, printed media, or it can also come in form, not only paper, paper can be of two types, the books and journals. So before formulating your general topic, you should first learn about the latest literature. And now I use a new term out of this context, latest literature with cross-referencing. These are the techniques which I have used in my research when I was a research scholar some 40 years back. And since then I produced 27 PhDs, therefore I have been coming across all these problems every day. One student with one problem, the other with another problem, so many problems are with these students. And supervisor is the ultimate source who will solve it. So I am talking you cross-referencing. Suppose you are interested in a particular topic, you go to the library, there are mathematical reviews, biological reviews, several reviews are there in the library, which are now coming in the electronic form. CDs are available. ये सब भी पढ़ता है इसलिए कि जब लिटरेचर सर्वे करेंगे तो ये सब करना पड़ेगा। उससे आप देखिए लेटेस्ट पोजीशन आपके टॉपिक की क्या है, और जो लेटेस्ट पोजीशन है उसने जिसने पेपर लिखा होगा उसने कुछ रेफरेंस दिया होगा, देन गो टू दोज रेफरेंसेस। यू नीड नॉट टू नो ऑल रेफरेंसेस इन द इनिशियल स्टेज, नो द लेटेस्ट पेपर, एंड बेस्ट इज टू कंसल्ट रिव्यूज। द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिव्यू। Now I discuss you the importance of reviews. Review is something very important. बेटा सुनो सुनना, इसको या तो तुम टर्न कर लो, मैं बैठने थोड़ी देर, मुझे पसीना आना, गर्मी बहुत लगेगी, और लिखना मुझे कुछ है नहीं। It is hard to stand for 2 hours. So reviews आप समझते हैं? What is review? पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, अभी तो एमएससी किया भी नहीं पढ़ा होगा। क्यों, तुम पहले पढ़ी हो? यहाँ एक लड़की थी ऐसी पिछले साल। रिव्यू इज एक्चुअली जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके सम पीपल डोंट डू ओरिजिनल रिसर्च, दे राइट रिव्यू पेपर्स। इसमें दे रिव्यू लिटिल हिस्ट्री ऑल्सो,
they review the current situation of the topic, and they review the future questionings also. So this is known as review. Several reviews are there available in each subject almost every year. What is important? You have to find out review journals. रिव्यू हर जर्नल में नहीं छपता, कुछ जर्नल्स रिव्यू छापते हैं, कुछ नहीं छापते हैं। ये आपको नेट पे देखना पड़ेगा कि ये रिव्यू ऑन दिस टॉपिक आप डाल दीजिए, उसका रेफरेंस आ जाएगा किस किस जर्नल में किस तरह के जर्नल कॉमन है जो ये छापते हैं। अब रिव्यू आपने मान लिया 2021 में निकाला, तो नेचुरल है 2020 तक के रेफरेंस उसमें होंगे, और 20 के ही नहीं होंगे, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट रेफरेंस हो तो 1920 का भी हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, उन रेफरेंसेस में व्हाट आर द रेफरेंसेस व्हिच सूट टू योर टेस्ट, योर चॉइस और टू योर क्यूरियोसिटी, go to consult them. They should have referred before their date. You can go to the origin of the topic as such. कहाँ से शुरू हुआ? Oh, yes. Too early. Too early. जब जागे तब सवेरा। तो रिव्यू जरूर पढ़िए। आपको ये स्कीम समझ में आई? Anything which is not clear to you? फिर पढ़ दो। Should I repeat it? Okay. Thank you very much for having understood. Otherwise, most of the students refuse to understand. क्या पढ़ाते रहिए, हम समझेंगे नहीं। तो जब आपने इतना कर लिया, तो इसके पैरेलल कुछ दूसरे नोट्स हैं, वो कहते हैं, जो कहते हैं वो बता रहा हूँ कि सेट ए रिसर्च क्वेश्चन। आपने लिटरेचर सर्वे किया, कुछ सवाल आपके मन में उठे, भाई ये क्या है, उन क्वेश्चंस को आप सेट कर दीजिए कि ये है। नाउ हियर योर स्किल, एक्सपीरियंस एंड सुपरवाइजर्स गाइडेंस, दे विल लीड यू टू फॉर्मुलेट ए पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन। सपोज आप यूनिवर्सिटी में आए, आप सारी बिल्डिंगें देखते चले गए। नाउ यू वांट टू नो व्हाट इज द प्लान ऑफ दीज बिल्डिंग्स। आई एम गिविंग यू वेरी एवरीडे एग्जांपल। What is the plan of these buildings? तो आप क्या करेंगे? This is not only question. What is the plan? What is the plan of these buildings and placement of different departments? This makes a full topic. Semicolon. Their vicinity and distances. Another topic. तो अब अगर आपने ये जान लिया यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ उनका प्लेसमेंट है, उनमें आपस में कितनी दूरी और कितनी नज़दीकी है, तो आप ये किसी स्टूडेंट बता सकते हैं कि इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ सच एंड सच सब्जेक्ट, आप इस बिल्डिंग में पढ़ना शुरू करिए, यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पास पड़ेंगी। दिस विल बी द बेनिफिट ऑफ योर रिसर्च टू द अदर स्टूडेंट्स। कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं, लेकिन रिसर्च का सिस्टम यही है। तो प्राइमरी सर्वे आपने इंफॉर्मेशन का कर लिया, और करने के बाद फिर आप इस पर चले गए कि सेट, इसको चाहे बेटा नोट कर लो, सेट ए रिसर्च क्वेश्चन सेट ए रिसर्च क्वेश्चन। फिर इसमें यह तय करिए वेदर इट विल बी ए ग्रुप रिसर्च और इंडिविजुअल रिसर्च। ये आपका सुपरवाइजर बताएगा भाई इस चीज पर सब लोग मिलकर काम करो या एक आदमी काम करो। और फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, टाइम एक्सपेक्टेड टू बी डिवोटेड। नौकरी कर रहे हो तो 20 साल का टाइम ले सकते हो, नहीं कर रहे हो तो 2 साल बहुत। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस। फाइनेंशियल सपोर्ट, फैसिलिटी कंटेन्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो। पैसा नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, सारा खेल पैसे का है। पिताजी 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो आप रिसर्च के टॉपिक 10 साल के ले लीजिए, बेकार है। यू हैव टू लिमिट विद इन 2 years, सो लॉन्ग यू हैव द रिसोर्सेज। सो नॉट ओनली फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज।
But again, word is confusing. Resource means literature, resource means laboratory, resource means data. Resource contains everything, from money to substances or supportive affairs. And facility means the working facility. Cycle नहीं है, जाना है कल्याणपुर, तो you will spend naturally more time. मोटरसाइकिल है और जल्दी पहुंच जाएंगे. What facility do you have? Accordingly, you have to choose your time frame. Okay? समझ में आई इतनी बात? जब यहां तक पहुंच गए, रिसर्च भी फॉर्मुलेट कर लिया भाई इस चीज के बारे में काम करना है, तो साइंसेज में इस चीज के बारे में से काम नहीं करता. अब इनका डायरेक्शन क्या होगा? Whether you want to do applied or you want to do fundamental. Suppose you are a biology student, you have taken the leaf, or a zoology student has taken the ear. Now he wants to do on physiological role of leaf, or he wants to do comparative anatomy of leaf, or he wants to do the vascular conditions of leaf, or somebody wants leaf as an indicator. क्या करना चाहते हैं आप? You have to decide there the direction of your research, whether it is abstract, material, fine, gross, applied, fundamental. ये सारे रिसर्च के प्रकार हैं जो सिलेबस में भी नहीं कवर्ड है. इसमें कुछ एक आध चीजें तो ऐसी थी जो होती नहीं या होनी भी नहीं चाहिए. तो नाउ यू हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, और उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट वेदर यू हैव स्किल्स टू डू इट. स्किल कई तरह की होती हैं. समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट योर ओन मॉडल. प्रोफेसर वैशंपायन वाज अर्लियर वाइस चांसलर हियर. ही वाज वर्किंग ऑन अप्लाइड इकोनॉमिक्स. तो ही मैथमेटिक्स वाले ज्यादा आसानी समझ जाएंगे. ही डेवलप्ड ए मैथमेटिकल मॉडल दैट टुडेज कोल्ड स्टोर विल एग्जॉस्ट इन हाउ मेनी डेज. आज के टाइम में इतना कोयला स्टोर में है, इतना कंज्यूम हो रहा है पर ईयर. इसका कंजम्पशन अगर इतना बढ़ता है तो ये कितने साल चलेगा, और पर ईयर अगर कंजम्पशन घटता है तो ये कितना और आगे चलेगा. तो आपको ये सब करने में अपनी स्किल के हिसाब से उस रिसर्च क्वेश्चन का विच यू हैव टेकन एज योर टॉपिक, यू हैव टू फाइंड आउट विच वे लाइज सॉल्यूशन. योर स्किल विल बी द पैरामीटर टू डिसाइड वेदर यू सॉल्व ए क्वेश्चन और यू लीव इट अनसॉल्व्ड. If you are in a position to solve, be happy, take the topic. If you find that your skills fail to answer the question, change the topic. Don't leave research, change the topic. And for the skill purpose, again, you should consult your supervisor. Sir, I do not know whether you can help. फिर वही बात आ जाती है, whether your supervisor is ready to help. जो मैं पहले कहा है कि whether supervisor is ready to cooperate with the problem. आप चाहते हैं कि हम वेक्टर एनालिसिस पे काम करें, वो कह रहे नहीं तो हम तो अलजेब्रा कराएंगे, तो आप ऐसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना. आप कह रहे हो हम फिश फान आप करें, वो कहेंगे नहीं हम तो चिड़िया पकड़ते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. So coordination between the supervisor and coordination and of the student, two primary things are there, and then a coordination of literature resource, a coordination of facility, a coordination of resources, and finally the finance. They make the basis how do you formulate your topic, and ultimately you are doing research. How long you are curious, how long you are innovative. So your skill will decide whether a particular topic is going to be answered or it will not. ये बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? ये तो यार लड़का टीचर के सामने कह ही देता कि अच्छा लग रहा है. वैसे ये सब चीजें जो हैं ये ड्राइंग रूम डिस्कशन वाली हैं. 2-4-6 लड़के बैठे हों, आप बात करते जाइए, वो अपने क्वेश्चंस पूछते जाएं, आप बताते जाइए. इट मेक्स इट मोर अंडरस्टैंडिंग देन एड्रेसिंग ए मॉब. मॉब तो है ही है. कहाँ 4 स्टूडेंट, कहाँ 80 स्टूडेंट, मॉब नहीं हो जाएगा. सी द प्रोपोर्शन.
Masses. If you are having an objection to word, I say mass, not all. आपने इतना कर लिया, रिसर्च टॉपिक अपनी स्किल सेट कर ली, अब आप इस पर आ जाइए कि इसको हम फिर से अप्रेजल जानते हो? डू यू नो द वर्ड अप्रेजल? स्वमूल्यांकन। आप खुद उसको पुनर्अध्ययन करें, रिव्यू करें जो कुछ आपने तब तक किया है, और करने के बाद ये देख लें, एक बार फिर कंफर्म कर लें कि जो हम कर रहे हैं उसमें जो लिटरेचर हमने सर्वे किया है वो वैलिड है कि नहीं। इंटरनेट की एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि आई टुडे गिव सम लिटरेचर ऑन नेट, आई अपलोड mischievously, and tomorrow when I see that some 1,000 or 2,000 viewers have gone and they have taken the notes of it, I will remove it. Now those who have taken note of it, they will be led in a wrong direction. This is mispropaganda. In strategic political systems, it is known as mispropaganda or false flagging. झूठ प्रचार करके सही बात को छिपा जाना, और नेट पर ही बहुत होता है। विकिपीडिया पे आप जाइए तो यू विल फाइंड ओपन टू एडिटिंग। Suppose they say Jawaharlal Nehru was born in 1889. You go and edit it and make it 2089. जब तक कोई पकड़ेगा तब तक तो 50 लोग पढ़ के चले जाएंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में मिला हुआ मैटर, you are supposed to tally it with printed availability of references उसमें नीचे होते हैं। वो references कल ही मैं पढ़ रहा था तो उसमें जैसे रामचंद्र गुहा की किताब का एक रेफरेंस दिया था, इंडिया आफ्टर गांधी। पिक अप द बुक एंड फाइंड आउट वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा फर्क हो डिस्क्रिप्शन में। कागज घूम रहा हो तुम? सर अटेंडेंस के लिए। अच्छा, ये ना बेटा पानी पिलवा दो कहीं से, अगर इस बिल्डिंग में पानी रह गया हो तो। पानी की सब जगह प्रॉब्लम है, और अभी नहीं हम जानते ना, इसीलिए पूछा। तो आपने जो कलेक्ट किया है वो वैलिड है कि नहीं, दिस इज फर्स्ट थिंग। इट इज इजी टू गो ऑन नेट टू ब्राउज, but whatever you have browsed, you must cross check it with the available printed papers, printed literature. May not be always printed. 2-4 वेबसाइट देखिए, एक ही स्टेटमेंट है कि नहीं। एक तरीका ये भी है, कोई जरूरी नहीं कि आप लाइब्रेरी में घुस जाएं। See for 2, 3, 4 resources, if each one is speaking broadly the same thing, then make notes of that broad statement. Do not go to very fine descriptions and all that. Some may say that forest area of India is 3%, some would say 2.99, some will say 3.11. You can safely write around 3%. लेकिन ऐसा ना हो कि कोई वेबसाइट 1% कह रही हो, कोई 4% कह रही हो, then you should go for a printed confirmation. Then what you have taken, whether it is valid or not, एक चीज तो ये होगी। दूसरी ये होगी कि ये कितना वैल्यूएबल है। मान लीजिए आप इस पर चले जाएं कि गेहूं की रोटी का कैलोरिक वैल्यू कितनी है, तो सैकड़ों वेबसाइट हैं, सब एक का वैल्यू बताएंगे, तो ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थोड़ा ही। इट्स ए बैनल फाइंडिंग, इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट बैनल फाइंडिंग, BANAL, कॉमन प्लेस, हर आदमी जानता है। इट इज नथिंग स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट एज सच। इसी तरह से वो ऑथेंटिक कितना है, वैलिड कितना था। अगर 2, 4, 6 कह रहे हैं, ठीक है, एक ही बात कर रहे हैं, वैलिड। ऑथेंटिक से मतलब है कि उसका एक्चुअल जो रिसर्च रेफरेंस है, जहां से ले रहा है, कि किसकी रिपोर्ट पर बेस करके उसने ये फाइंडिंग लिखी। दिस इज द ऑथेंटिसिटी। सो अनलेस यू आर श्योर दैट समथिंग इज ट्रू, that is valid, something is important, not a common finding, and something is authentic one also, you should not include it into your system of formulating the research problem.
किसी भी चीज को फॉर्मुलेट करने से पहले जिस प्रकार की चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए, जो आपने साहित्य देखा हो, जो पुराना लिखा पढ़ा देखा हो, वो सबका सब सत्य हो, विश्वसनीय हो और मूल्यवान हो, उसमें बेमतलब की बकवास न हो। ठीक है, बहुत सी चीजें बकवासी होती हैं। कुछ लोग थीसिस लिखते हैं, लिखते लिखते 150, 200, 250 पेज घुसड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। कितनी मोटी आप चले जाओ लाइब्रेरी देखो, नंबर ऑफ थिंग्स आर सो। कुछ लोग लिखते हैं सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक लिखते हैं, लिखते चले जा रहे हैं, आप पढ़ते जाइए, कुछ समझ में आता है कहना क्या चाहते हैं। हम लोग जो पढ़ते थे, किताब आती थी जॉर्ज गिलार्ड सिम्पसन टैक्सोनॉमी। My friends, I tell you honestly, I read the whole book from cover to cover, and yet I could not, even today I cannot understand what was written there. आज भी नहीं पता। तो एक्सप्लिसिटली मतलब ऑथेंटिक हो, वैलिड हो और मूल्यवान भी। सिर्फ लिखा हो। आप सही कह रहे हैं। हम बेटा अक्सर सही कहते हैं। पूरे बिल्डिंग कहीं आ रहे दिख ही नहीं रहा। सही साफ है पानी से। 2 बोतल सर अलग अलग। बेटा 2 बोतल 3 बोतल बात नहीं है, हम तो सब पी जाएंगे। व्हाट यू विल डू, हमारा काम देखो देखो सुनो सुनो सुनो, जस्ट सी बेटा, आधा घंटा हो गया, कितने आई कैन बी फूड द क्लास, आधे घंटे और इधर घुमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब नाउ प्लीज कीप साइलेंस। सो दिस अप्रेजल एक दूसरा डिस्क्रिप्शन है दूसरी यूनिवर्सिटी का, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वो इसके पैरेलल एक बात रखते हैं। वो कहते हैं रिसर्च मेथड्स, एथिक्स टू बी फॉलोड। तो जब आपने ये मालूम कर लिया कि आपके लिटरेचर सब ठीक है, सब मामला, तो अब उसे मेथड्स आप क्या क्या अप्लाई करेंगे, वो उसी से निकलेंगे। नाउ यू हैव टू चूज आउट द मेथड्स। और अगर मेथड आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या आपको नहीं, आप तो खुश होंगे भाई हमने अच्छा मेथड ढूंढ लिया। योर रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन दैट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेथड टू बी सॉल्व्ड, टू बी आंसर्ड और टू बी वर्कड ऑन। सो वेदर योर मेथड इज फिट फॉर दैट, इफ नॉट तो फिर वही पहले वाली बात आ जाती है, आपकी स्किल। हाउ कैन यू मॉड्यूलेट द मेथड बाय योर स्किल और विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बड़ा अंडरलाइन फैक्टर है, वो थ्रू आउट चलता रहता है। Now ethics are there. Suppose you 4 persons are working together. Ethics से nothing should be hidden. सब आपस में एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम, अपना फाइंडिंग, अपने रिजल्ट्स डिस्कस करते रहेंगे और कोई किसी की नकल नहीं करेगा। So for a true research, you will not mind if I say true and false research. False research is for degree research. सिर्फ डिग्री उसका उद्देश्य है। जैसे आजकल होता है ना कि इम्तिहान में आपको राइटर चाहिए, तो पैसे दीजिए, कापी भी लिख जाएगी, जमा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। देयर आर सर्टेन केसेस। उसी तरह से रिसर्च में भी है कि चाहिए डिग्री चाहिए ना, ठीक है इतना लिख लो, हो जाएगा। दैट इज द फॉल्स रिसर्च। अगर ट्रू रिसर्च है तो आप यू हैव टू बी एथिकल, नैतिक होना पड़ेगा कि हम अगर आपका एक सेंटेंस कोट कर रहे हैं तो हम लिखें कि इन्होंने ये हमको बताया है। आई हैव रेड पेपर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च एंड स्टिल आई डू रीड अनपब्लिश्ड ऑब्जर्वेशंस, Friedberg unpublished observations. That gentleman had worked and communicated it to the author of the paper that these are my findings, but I have not published them. He acknowledges that these observations were not published, but were told to me. He takes an account of it, but at the same time he says that it is not published. आप प्रबल लिटरेचर में इसको ढूंढने न जाएं क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ। This is the level of honesty that even a line you have picked up. आप किसी को रेफर करके, साइकोलॉजी में किताब हुआ करती थी मन की, MANN, पेजेस ओवर पेजेस दूसरे का, और फिर वो लिख देता था कि दिस हैज बीन सेड बाय फलाने फलाने। नाउ आई से
then he is matter is started. Quoting is not a crime. Quoting is not a crime. Copying without quoting is a crime. And misquoting is a greater crime. Quotation should be word by word. And if you are referring to a thought, then just put down that such and such has worked so and so. Yeah, you can say that the larger work on fishes in India was carried out by Francis Day. Was carried out in 1974. आपने लिख दिया 1874. ब्रैकेट में लिख दिया Francis Day 1874. So name must come there somewhere in the description. And to be ethical at the same time means that do not report wrong things. अपने थीसिस को, अपने पेपर को, अपनी फाइंडिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उनमें खाम खा कुछ ऐसा मत जोड़ दीजिए जिससे रोमांच पैदा करने वाले अरे इन्होंने ये पा लिया, तो ये मत करिए. Even a negative report is a valid report. Suppose you conduct a research experiment that fails. For example, you want to know that is there any apple tree in university campus? सेब का पेड़ है कि नहीं? सपोज करिए यही यूनिवर्सिटी कालका में होती है और कालका में आप घूमते सेब पेड़ है कि नहीं, तो एक निगेटिव रिजल्ट आपको मिलता है कि सेब का पेड़ नहीं है. Even this report that these plants are not available in the university campus, this too is a valid report because it rules out further research on that topic. कि ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता. And after some times, if any one of these species which you have reported to be absent from here appears to grow, again it will be a research that then it was absent, but today it is present. Right? So my dear friends, my very conclusive remark is this on research, that negative results are as important as positive results. आप 100 पेज 100 पेज की थीसिस लिखने के बाद ये कहें कि हमने ये हाइपोथेसिस ली थी, but on the basis of these findings it proves to be wrong. Even this is valid for thesis. Even this is valid for the awarded degree. जरूरी नहीं पॉजिटिव रिपोर्ट से. जितना ये कहना इंपॉर्टेंट है कि सन राइजेस विद द डे, उतना ही ये भी कहना इंपॉर्टेंट है कि नाइट स्टार्ट्स विद द सनसेट. नेवर बी एफ्रेड इन रिसर्च, बी करेजियस. एक चीज होती है कि प्रॉब्लम अवॉइडिंग. भाई प्रॉब्लम आपने चूज की, इतने दिन आपने लिटरेचर पढ़ डाला, गूगल कर लिया, ये कर लिया, वो तो सब कर लिया, अब फिर आप कहो ये सॉल्व नहीं होगी. तो वो वेरी इनिशियल, गो बैक टू वेरी इनिशियल स्टेज. Evaluate your facilities, evaluate your supervisor situation, evaluate the literature available, and only then choose a problem so that you don't meet a fiasco. लास्ट में आप जो है वहां पर लटका के बैठ जाए. This should be the approach for research. But everything has to be noted, as I said, you prepare the notes of it. Notes से क्या होता है कि जब आप लिखने बैठते हो तो आपके सामने evolution of your idea. Do you understand evolution? Mathematics people, do you understand evolution? Students of mathematics and physics, do they understand the meaning of evolution? Say yes or no. भैया विकास का अर्थ पता है? ई माने आउट, वॉल्यूट माने निकलना, रिवोल्यूशन पीछे निकलना. यानी जब क्रांति होती है तो जो कुछ आगे बढ़ चुका है वो सब रहता है. दैट इज रिवोल्यूशन. बार बार पीछे की तरफ घूमना, रिवॉल्व करना. So is evolution, something to come out. Your evolution of the topic from day one to last to present, you have notes on that. तो जब आप पेपर लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे या अपनी बात कहना चाहेंगे या कहीं आप प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे
So these notes will help you to present your matter in an understandable manner. अंडरस्टैंडेबल मैनर कल हम लोग बात करेंगे जब लिटरेचर सर्वे की बात करें, उसकी बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की 9th यूनिट में. तो नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड. और नोट्स के साथ एक चीज आपको बता दी, अभी रेफरेंसेस की बात हम लोग कर रहे थे. जितने पेपर आपने कंसल्ट किए, जितने क्रॉस रेफरेंस कंसल्ट किए, व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, हमारे टाइम में होता था, आज भी होता है, करना चाहिए. देयर आर सर्टेन कार्ड्स, a drawing sheet of this size, and they are ruled cards. तो उसमें सीक्वेंस क्या लिखते हैं, दो तरह की चीजें. ऑथर, then year X by Z, मानिए कोई है 1984, 1982, 2005, whatever. Then publication, then pages, किस पेज से किस पेज तक. अब ये डिफरेंट लोगों के अपने अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं. कोई कहते हैं पहले पेज लिख दीजिए, कोई कहते हैं कि साहब ईयर आप आखिर में लिखिए, कोई कहते हैं कि जर्नल का जो शॉर्ट फॉर्म आप देंगे वो ये होना. इंटरनेशनल भी है तो उसमें वो लिखते हैं, कहते हैं कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन जर्नल शुड बी गिवन. तो आपको एक्चुअली अपने मन से मत बनाइए, जो दिया हो वही लिखिए. इसी काम को क्या करते हैं कि एक कार्ड आपने लिया, आप जाएंगे स्टेशनरी दुकान, रेफरेंस कार्ड मिल जाएंगे, ऑथर का नाम लिखा और ऑथर में उसका सरनेम पहले लिखते हैं ताकि अल्फाबेटिक सिस्टम से आप उसको अरेंज कर सकें. फिर टाइटल क्या है, किस सन में उन्होंने ये ज्ञान दिया, वो सन लिख लीजिए. फिर उन्होंने क्या कहा, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, द आइडिया ऑफ पेपर. किस सन में कहा, किस जगह कहा, तो वो जर्नल, जैसे जर्नल ऑफ कंपैरेटिव बायोलॉजी या कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी या मैथमेटिक्स, व्हाटएवर, जर्नल का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप पहले लिख चुके हैं. पेजेस कौन से कौन, वॉल्यूम कौन सी थी. बहुत से जर्नल साल में एक बार छपते हैं, बहुत से 12 बार छपते हैं, तो वो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर, वॉल्यूम एंड देन पेज. और ये कलेक्शन ये कहे जाते हैं रिसर्च नोट्स या रेफरेंस कार्ड्स, रेफरेंस लिटरेचर. तो ये रेफरेंस कार्ड्स अगर आप अपने पास रखे हैं तो उनके दो तरीके हैं अरेंजमेंट के. आप जब चाहें तो उनको ईयर वाइज अरेंज कर लीजिए, हर स्टेटमेंट लूज है, एक अलग कार्ड रखा. जब चाहें ईयर वाइज लगा लीजिए, जब चाहें अल्फाबेटिकली लगा लीजिए. तो जिस समय आप पेपर प्रिंट करने को दोगे, टाइप करने के लिए, जितने रेफरेंस उसमें आए हैं उतने कार्ड निकाल के आपने अलग कर लिए, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दिया और दे दिया. रेफरेंसिंग का भी तरीका है और 2-3 तरीके उसके पॉपुलर हैं आजकल. इजीएस्ट मेथड चल रहा है, बट दैट इज हाईली कंफ्यूजिंग. एनीवे, वी विल डिस्कस इट आफ्टर ऑन द नेक्स्ट मंडे. इतना आपको करना ही पड़ेगा कि अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखिए कि हमने क्या क्या कंसल्ट किया है. बिना उसके हमेशा आप इस कंफ्यूजन बने रहेंगे. बाय डायरी में लिखा है, पन्ने पर लिखते रहिए. व्हेन ईच रेफरेंस इज फ्री, आप जहां से चाहें वहां लगा लीजिए, उठा. दैट इज द फैसिलिटी विद दैट. या दूसरा अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि एक्सेल पे चले जाइए, ऑथर का नाम डालिए, ईयर डालिए, शॉर्ट टाइटल डालिए, क्योंकि उसमें कॉलम इतने बड़े नहीं होते हैं. या शॉर्ट टाइटल जरा सा आप इंडिकेट कर लीजिए कि किस चीज पे पेपर है और किस जर्नल में छपा है. वो लिस्ट आपके पास रहनी. जब आपको ईयर वाइज छांटना हो तो उसको ईयर वाइज ऊपर नीचे कर लीजिए और वो प्रिंट आउट निकाल के फिर अपने रेफरेंस कार्ड्स उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिए. देयर विल बी ए लिटिल फेल्योर. आज के समय में आई एम टॉकिंग ऑफ द ओल्ड एजेस व्हेन कंप्यूटर वाज नॉट देयर, इन प्री राजीव एरा.
राजीव गांधी के आने के पहले जो था, तब ये था कि रेफरेंस कार्ड ही अल्टीमेट होता था। जब से कंप्यूटर आया, खासतौर से 2000 के बाद से, जब ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया, तो नाउ एक्सेल कैन बी एन असिस्टेंस टू द लिटरेचर सर्वे एंड टू रेफरेंस कार्ड जनरेशन। ओके, इसके लिए कहते हैं साहब, यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं कि जो डेटा आपने लिखा, डेटा कैन बी वट एवर यू हैव कम अक्रॉस इन द लिटरेचर, देन हैव an idea of it, whether this data is primary or secondary. Do you know primary and secondary data? I think mathematics people should be knowing. क्यों? प्राइमरी सेकेंडरी डेटा मालूम है? हैं? मालूम है? बताओ। So what we have read in physiotherapy, primary data is the data that we collect, and secondary is from the other sources. Yes. Data. Say for example. So for example, let's suppose I'm working on postmenopausal women, and I want to know their pulmonary function. So the data I'm going to collect about the pulmonary parameters is the primary data. And if I want to know that what have been done in the retrospective thing or anything related earlier, Yes. and I'm deriving data from there. What data you collect from the papers you have studied or the textbooks you have studied, all that makes the secondary data. So your primary problem will be based on your secondary data. Then the hypothesis or the idea or the formulation of your topic, which you have concretely framed कि हमको इसी पे काम करना है, to support that you generate primary data in experimental sciences, not in theoretical subjects. Suppose you do in philosophy, there is no data. You do in history, there is data, but that data is unchangeable data. अगर 327 ईसा पूर्व सिकंदर आए तो 327 में आते रहे तो 326 नहीं हो सकता। That data cannot be changed. ठीक है? पर कैपिटा इनकम इंडिया की अगर किसी जमाने में 3 रुपए थी, तो आज आप हो सकता है किसी एक ग्रुप में 3000 हो, एक में 3 रुपए हो, 300 रुपए हो, किसान की आमदनी 2700 रुपए रोज है, रोज हल्ला मचता है टीवी पे। तो दीज आर द चेंजिंग डेटा एंड अगेन सेकेंडरी। तो आपने कोई सर्वे नहीं किया कितनी आमदनी है, जो लिखा गया है वही है। तो समटाइम्स यू जनरेट प्राइमरी डेटा बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, or you depend on the secondary data as supplied by the survey agencies, and then you justify that your findings are right or wrong. Again, keep in mind, a wrong finding does not mean that it is invalid. It rules out several other wrong possibilities to be further persuaded. Once you have your data, again I do not want to use the word data here because data refers too much to numerical figures. Once you have your references in your hand, your problem is formulated, everything is done. Once again go through the references, logically apply them to your problem. Whether your problem is a logical proceeding, will be a logical proceeding according to past record of the literature. ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई ऐसी समस्या ढूंढ ली हो जिसका कोई तर्क ही नहीं। तर्कहीन स्थिति में तो नहीं आ गए। जैसे आप ये सोचने लगे कि मछली हवा में सांस कब लेगी, तो कभी नहीं लेगी। तो you should know कि इसने it has never respired in air. Even if it respires air, it needs water respiration also. Okay? So logical credibility of your research has once more, before you start working, आप लेबर पैसा टाइम सब वेस्ट करें, उसके पहले एक बार फिर तय कर लीजिए कि whether this one is a formulation to be persuaded or not. If not, please make corrections into the system which you are going to pursue for the logical and correct approach. इतना सब कर लेने के बाद में आपने अब तक जो कुछ किया है उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखने का प्रयास कीजिए।
ये तो कहते हैं अमेरिकन कि आप रिसर्च पेपर लिखिए, तो जब रिसर्च अभी तक नहीं की पेपर क्या लिखिए, वो लिखिए जो आपने अब तक किया है, ठीक। और उसके कुछ भी लिखने के लिए, चाहे थीसिस लिखनी हो, चाहे रिसर्च पेपर लिखना हो, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया है कि हमने ये कर लिया, इसका ये रिजल्ट है, तो शुरू वहां से कीजिए, क्या किया, कैसे किया। इसको हम लोग अगले मंडे को डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट। अभी अभी बता रहा हूं क्या किया, कैसे किया और क्या पाया, ये एक रफ आप लिख लीजिए। फिर इसको आप जय बार पढ़ाएंगे, तब बार आपके दिमाग में आएगा यार ये चीज छूट गई, इसको ऐड कर लो, ये चीज छूट गई, ऐड कर लो। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज हम आपको बता दें, कभी भी रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन सबसे पहले नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर विच विल फॉलो। First produce all aspects, then summarize them into your introduction. If you begin from introduction, you may miss certain things and your introduction may become absurd. So don't do that. So you write a paper, rough paper on this, जिसमें सिर्फ आप वो चीजें शामिल करें जो सेंसिबल हो, जिनका कोई मतलब होता हो, और जो साथ साथ एक्सप्लेन की जा सके। अनएक्सप्लेनेबल फैक्ट्स को आप बाहर निकाल दें। This will rectify your research methodological proceeding. बहुत से काम करने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत से काम करने में बहुत से अजूबे एकदम से मिल जाते हैं कि अरे ये भी था। तो उसको मैंने आपसे पहले कहा कि आप पहले उसको एनालाइज करिए, कितना ये सेंसिबल है, कितना नॉनसेंस है। अगर कोई चीज नॉनसेंस है, विच डज नॉट सूट द लॉजिक, विच डज नॉट फिट द फंक्शन, रिमूव इट। Find out which you can explain and which makes sense. What is sensible, what is explainable, keep it in the notes of the paper. सबसे पहले पेपर लिखने की कोशिश कीजिए, थीसिस बाद में लिखिए। उसके बाद आप रेफरेंसेस लें। दो शब्द प्रयोग होते हैं, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। Do you know the difference between two? Please respond to my questions. If you do not know, I can go further explaining it, and if you know, then I can ignore it. मालूम है? रेफरेंस माने होता है संदर्भ, किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। यू कोट एन ऑथर, और जैसे मैंने भी आपको बताया कि फला फला ने सेशन में ये किया। हमारी फाइंडिंग है कि हिंदुस्तान में इस समय इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके समय रिजर्व बैंक ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो आप सारे रेफरेंस देते ना, क्योंकि आप तो खुद देख नहीं रहे हो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। आपको तो पता है हमें घर से इतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो तो वाकई एजेंसीज बता रही हैं। किस एजेंसी ने कहा, दिस इज रेफरेंस, आपने उसके संदर्भ या उस रेफरेंस में अपनी बात कही। जितनों के रेफरेंस आप देखते हैं इन द टेक्स्ट ऑफ योर पेपर, ऑल ऑफ देम शुड अल्फाबेटिकली बी मेंशन्ड एट द एंड। एक भी मिस नहीं होना चाहिए, सारे हों, और एक भी ज्यादा ना हो। वो आपने मेंशन नहीं किया और दिए बैठे तो संदर्भ किसका लिया आपने? ऑन व्हाट रेफरेंस यू सेट? सिंस दिस रेफरेंस इज नॉट यूज्ड, दिस शुड नॉट बी इन योर लिस्ट आल्सो। बिब्लियोग्राफी, फाइनेंशियल रिसेशन पर जितना लिटरेचर आज की तारीख में रिजर्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फलाने डिमाके किताबें, करंट लिटरेचर जो है, आप सबकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना लीजिए। दिस इज बिब्लियोग्राफी, ठीक। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बिब्लियोग्राफी कंटेन्स ऑल रिलेवेंट लिटरेचर, रेफरेंसेस कंटेन्स ओनली रेफर्ड लिटरेचर। ओके, ऐसे ही बाद में आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट और समरी में क्या फर्क होता है। 99% people do not know what is summary and what is abstract. So this much you have done, then there is something, editing and revising. बार बार पढ़िए, बार बार ठीक कीजिए, और जब आप अपने में संतुष्ट हो जाएं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, then give it to your supervisor, let him find out what is wrong there or what is yet to be added,
further correct it, and then give it to your friends or to other unknown person to the field. मतलब ऐसा नहीं मैथमेटिक्स का आदमी तो आप हिस्ट्री वाले को दे, give it to some mathematics person, but he should not be very much well versed with your problem. Let him read. What is the purpose? आप जो कह रहे हैं, whether it is transmittable, हम जो कह रहे हैं क्या वो वैसा ही समझा जा रहा है जो इसका अर्थ है या जो हम कहना चाहते हैं. कभी कभी क्या होता है कि we get satisfied by our language within ourselves, बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं बहुत समझ लिया, लेकिन whether my idea is flown to your mind, this is more important. So it should be given to your friend, your sister, your father, whosoever is capable of reading, कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है. And unless it is clearly transmittable idea, do not publish it. ठीक है? So the time is over. अब आप लोग एक कार्य करिएगा, जिसकी इच्छा हो, जिसकी इच्छा ना हो ना करें. जितना मैंने आज आपको बताया, इस पर एक पेपर लिख लाइएगा, एक पेज का, नॉट मोर देन 1 पेज, और कल मुझे दे दीजिएगा. अगले हफ्ते जब आएंगे तब उस पर बात करेंगे, so that you can learn writing, how to write. As a teacher, I believe a teacher should leave the class by leaving something practicably to be used by the students. And if he does not do so, he does not discharge the function of a teacher. Okay? भैया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?